Hello Zesties, welcome back to my channel. So today's video is definitely not any haul, it's not any vlog, but I think it's something which every girl, or for that matter every human should know. And people who have clicked on this video, I think they definitely know what PCOD is. Either they themselves must be going through this journey, or they might have seen people around them who are experiencing it. Not textbook kind of a video. मतलब मैं यहाँ पे कोई facts नहीं बताने वाली हूँ, like what is PCOD and types of PCOD. This video is not about that. ऐसे type के videos आपको YouTube पे, आपको Google पे बहुत सारे मिल जाएंगे. This video is basically it's about my journey, like how I got to know about this disorder and how I'm fighting with it. As you must have seen on the thumbnail ki I have written ongoing PCOD journey, because this journey never really ends. It can only be controlled, so hence it's a ongoing journey. So let's start today's video on how I'm managing it amidst all the other problems in life. So first is how I actually got to know about this. Before we go ahead with this story, I would like to give you a little background of my life. So I have been married for last 7 years, and I was around 24 years of age when I got married, and everything was going fine. I had no symptoms of this PCOD or thyroid whatsoever before this. Okay, everything was going fine. So after 2 to 3 years of marriage, we thought of planning pregnancy. Okay, like every other couple. So my actual journey of PCOD starts from here. We started planning, and it was just not happening. I was like, yaar kyun, I'm young and periods are regular and everything is going fine. ये conceive क्यों नहीं हो रहा है? Of course I had miscarriages, but things were just not falling in place even after that. So finally we decided to go to the gynec and do a regular checkup. During the sonography, ultrasound, whatever you say, the doctor got to know that I have cysts on my ovaries. So basically PCOD का full form ही ये होता है, polycystic ovarian disease or syndrome. We got to know that I have PCOD, but for further confirmation the doctor always tells you कि आपको ये test करने हैं. And yeah, so I did those tests, and finally it was like 100% confirmed कि हाँ भाई PCOD है इसको. This is how I actually found it. Okay, I was around 27 years of age when I got to know that I have PCOD, which is quite late actually. Normally लोगों को teenage में ही मालूम पड़ जाता है that they are suffering from PCOD or PCOS, and वहाँ से उनका वो lifestyle changes शुरू हो जाते हैं. But I felt like I was too late in getting to know, क्योंकि I was already planning for pregnancy and I was like यार ये तो और देरी कर देगा. Next is what I immediately did, which I feel one shouldn't. So doctor told me that PCOD is nothing to worry about. It's reversible. It's under your control. It's how you make your own lifestyle. तो कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है. आपको सिर्फ 5 kilometers का walk करना है, and you have to cut down sugar, you have to cut down rice, and you have to lose weight, and थोड़े बहुत उन्होंने medications भी दिए. So he was like ये सब करने के बाद it will be automatically reversed, and you will be very much fine. So because I really wanted to conceive, I started doing all these things like really vigorously. So a person who hadn't even done a single pose of yoga was walking for like 5 to 6 kilometers per day. I was like ये सब करने के बाद maybe in another 1 or 2 months things will be reversed, and I'll lose weight, and all these things will happen, और मैं conceive भी कर लूँगी. This is what I want to tell you guys कि ऐसे इतनी जल्दी बिल्कुल मत करना. It was like एक रात पहले मैं राइस खा रही थी, and the very next day I just left it. So what happens is your body actually goes in shock, and फिर उसके तो अलग ही side effects है, फिर उसके आप अलग से medicines लोगे. तो एंड ये सब के बाद ये जो आप 5 किलोमीटर्स का वॉक कर रहे हो, तो उसके बाद तो आप वेट लूज करोगे. फॉर अ पर्सन लाइक मी लूजिंग वेट इज लाइक मैं ऐसे कर लेती हूँ, लाइक इट्स दैट इजी फॉर मी. एंड आई हैव PCOD. लाइक इन जनरल PCOD के बारे में बोला जाता है दैट पीपल डोंट लूज वेट, दे गेन वेट. मेरा तो कुछ अलग ही चल रहा था. बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कोई भी चीज आप
जल्दी जल्दी ना स्टार्ट करें। जैसे अगर आपको 5 किलोमीटर्स का वॉक बोला है, देन यू कैन स्टार्ट विथ लाइक 1 और 2 किलोमीटर्स इन द इनिशियल डेज। आप 1 मंथ भी 1 और 2 किलोमीटर्स कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बढ़ाइए, एंड देन गो फॉर 3, देन गो फॉर 4, एंड देन फाइनली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन ऑफ 5 किलोमीटर्स। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। यू आर कटिंग ऑफ शुगर, डू इट रियली स्लोली। एक झटके में आप सब कुछ बंद मत करो, योर बॉडी रियली गोज इन शॉक। उसके बाद जो आपको हेयर फॉल होगा, दैट इज लाइक आई हैड लाइक इमेंस हेयर फॉल बिकॉज माई बॉडी वॉज इन सो मच स्ट्रेस। प्लीज डोंट डू दैट विद योर बॉडी, टेक इट वेरी डेलिकेट। लोगों को डाउट हो सकता है कि इज पीसीओडी एंड थायराइड रिलेटेड? देन येस, इट इज रिलेटेड। तो मोस्टली जिनको पीसीओडी पीसीओएस होता है, दे आर हाईली लाइकली टू गेट डायग्नोज्ड विथ hypothyroidism. This is like whole another topic of thyroid, ये कभी और बात करेंगे। But yeah, so PCOD and thyroid are like very much related. तो अगर आपको PCOD डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोज हुआ है, देन डू योर थायराइड वाले टेस्ट। ओके, वो डॉक्टर्स आपको नॉर्मली बोल ही देंगे, बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि थायराइड भी आपको हो सकता है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, बट मोस्टली होता है। मुझे तो हो गया था, पहले मुझे थायराइड कुछ भी नहीं था, बट आफ्टर दिस पीसीओडी प्रोसेस स्टार्टेड, थायराइड भी मुझे डिटेक्ट होने लगा। So yeah, it is definitely connected. So next is, what are the symptoms that I experienced? I think this part is like the highlight of this video, because a PCOD patient has not experienced any symptoms. Okay, like no symptoms at all. Okay, you can see my face, I have no acne. Okay, touch wood. I had no acne also all these years. Like gaining weight थोड़ा बहुत शायद वो शादी के बाद थोड़ा बहुत हो गया था, but it's not like कि मैं बहुत ही कुछ obese हो गई थी. So I don't consider that also as a symptom. In facial hair, mood swings, ये सब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, मूड स्विंग्स पीरियड्स के टाइम पे, जैसे PMSing जो बोलते हैं, वो टाइम पे मुझे कभी कभार मूड स्विंग्स होते थे, बट that I think normal people without PCOD also get. Like मुझे as such hardcore symptoms कभी आए ही नहीं। तो I never went to the gynec for this purpose. बहुत सारे लड़कियों को irregular periods आते हैं, and because of which they go to the gynec, but I had no such reason to go. It is only when we decided to get pregnant and all that, तो उसी टाइम पे मुझे पता चला, but other than that, like I had no symptoms at all. Basically there are different types of PCOD. inflammatory PCOD हो गया, insulin resistant, lean PCOS, then there is adrenal PCOS and hidden PCOS. So all these different types of PCOS have their own set of symptoms. Okay, इसमें से मुझे कोई भी नहीं थे। तो कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन, यू ऑलमोस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि आई वाज टोटली एलियन टू ऑल दिस टॉपिक्स। ऑल आई वांट टू से इज, go and visit your gynec, whether you're married or unmarried. Getting your hormones checked is very very important. इस पूरे stress के ज़माने में we women go through a lot of changes in our body, and it's like the sooner you diagnose it, the better it is. Please go to your gynecs and yeah, get yourself checked. So next comes, what tests and medications did I actually take? Tests की अगर बात करें, then as I told you, जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया था, उसके बाद टू गेट दैट 100% कंफर्मेशन अबाउट पीसीओडी, डॉक्टर्स गिव यू सर्टन टेस्ट कि आपको ये करके आना है। उसमें से होते हैं LH, FSH, then there is AMH. AMH is not very much necessary for normal girls. ये अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो उनके लिए दिस AMH hormone test is important. It basically gives you the egg count. PCOD वाले पेशेंट्स में ये जो AMH hormone है वो मोस्टली नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ही रहता है, because they have eggs in a large quantity. Okay, but the quality is not that great. Okay, so that is what basically PCOD does to your eggs. Okay, और इस तरह से फिर वो infertility भी होती है, क्योंकि वो eggs उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं आते। क्वांटिटी शायद उनकी ज़्यादा होती होगी, बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। साथ साथ मुझे हेमोग्लोबिन, देन फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, दैट इज FBSL, बिकॉज PCOD वाले पेशेंट्स को ग्लूकोज बहुत रहता है उनके खून में, एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ डायबिटीज, प्री डायबिटिक, बिकॉज ऑफ विच वो FBSL का टेस्ट भी देते हैं। सो ये सारे टेस्ट करने के बाद यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड शो देम द रिपोर्ट्स।
एंड उसके बेसिस पे दे विल गिव यू मेडिकेशन। तो मुझे उन्होंने ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं दिए थे उस टाइम पे। तो आई वॉज प्रिस्क्राइब्ड थायरोनॉम फॉर थायराइड एंड ग्लाइकोमेट फॉर पीसीओडी। नेक्स्ट इज हाउ एम आई डीलिंग विथ इट नाउ। See, after all these years of struggling with PCOD, I have realized one thing कि अपने बॉडी पे अगर आप ध्यान रखोगे देन सब कंट्रोल में रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी हैज नॉट येट हैपेंड, उसके लिए और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट आई थिंक जो स्ट्रेस मैं इतने सालों से ले रही थी बिकॉज ऑफ दिस PCOD एंड लूजिंग वेट एंड नॉट गेटिंग प्रेगनेंट बिकॉज ऑफ PCOD, आई एम नॉट टेकिंग इट एनी मोर। ओके, मैंने सब छोड़ दिया है बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि स्ट्रेस से आपको PCOD होगा, PCOD से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो दोबारा आपको स्ट्रेस होगा। तो इट्स लाइक अ फुल साइकिल दैट विल नेवर एंड। स्ट्रेस तो वैसे हमारी जिंदगी से कभी जाता नहीं है, छोटे मोटे स्ट्रेस तो आते ही रहेंगे, बट दिस स्ट्रेस वॉज लाइक अ मेजर स्ट्रेस इन माई लाइफ। एंड आफ्टर ऑल दिस ईयर्स आई थिंक आई हैव रियलाइज दैट स्ट्रेस लेने से सब कुछ खराब ही होगा, कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है। कमिंग बैक टू वॉट आई एम फॉलोइंग right now, so yeah, there are like many changes that I did in my day-to-day life, lifestyle you can say. So first thing that I do in the morning is drink मेथी या सौंफ का पानी। ओके, तो एक रात पहले आपको भिगो के रखना है, या तो मेथी या फिर सौंफ। तो आई टेक लाइक अल्टरनेट डेज पे, कभी मेथी ले लिया तो नेक्स्ट डे आई टेक सौंफ का पानी। तो एक रात पहले आपको भिगो के रखना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू ड्रिंक इट। सो दैट इज लाइक द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सी, ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ऐसे लाइट ले सकते हैं, ओके, लाइक पोहा हो गया या ओट्स हो गए, तो उस टाइप का आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड नट्स इन योर ब्रेकफास्ट, या फिर आप पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाओगे तो अच्छा रहेगा। एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। वो भी मैं एक रात पहले उनको भिगो के रख देती हूँ, लाइक मे बी 5 to 6 बादाम एंड 2 to 3 वॉलनट्स, एंड द नेक्स्ट डे उसको छील के आई ईट इट। सो दिस इज वॉट आई थिंक आई हैव चेंज्ड। मैं पहले नट्स बिल्कुल भी नहीं खाती थी। एंड नेक्स्ट इज आई थिंक एवरीबडी नोज कटिंग ऑफ शुगर। ओके, लाइक आई वुड से आई माइट हैव कट डाउन अराउंड 90% ऑफ द शुगर। मैं 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि कभी अगर मेरा मन हुआ कि मैं चाय पीऊँ तो आई प्रिफर इट विथ शुगर, तो वहाँ पे शुगर में ले ही रही हूँ, बट दिस इज़ लाइक बहुत रेयरली होता है। देन अगर कोई फेस्टिवल हो तो उसमें हम स्वीट खा ही लेते हैं। सो सो आई हैव केप्ट लाइक द 90% मार्जिन। मैं 90% तो मैंने कट ऑफ कर ही लिया है, उतना तो श्योर है, 10% यहाँ वहाँ हो सकता है। तो नेक्स्ट कम्स राइस। ओके, आपको राइस की क्वांटिटी कम करनी है। अभी मैं यहाँ पे राइस के बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ, इज बिकॉज वी एज गोवंस आर स्टेपल फूड इज राइस। वी कैन नॉट लिव विदाउट आर राइस। ओके, राइस के बिना तो हमारा होता ही नहीं है कुछ। एवरीबडी, इट्स नॉट लाइक only my family, it's like the entire state is crazy about rice. So हम लोग को like दोनों टाइम लंच एंड डिनर दोनों टाइम पे हमें राइस चाहिए। बचपन से हम लोग वही चीजें खाते आ रहे हैं, एंड सडनली उसको ऐसे जीरो कर देना वॉज लाइक रियली डिफिकल्ट, विच आई हैड डन इनिशियली। उसके साइड इफेक्ट्स मुझे फिर पता चल गए। तो नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिक्रीज द अमाउंट ऑफ राइस। खाती तो मैं हूँ, बट या क्वांटिटी कम की है। देन आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ओके, सो चाहे वो एग्स के थ्रू हो, फिश, चिकन। तो अगर आप वेज हो तो यू कैन गो फॉर पनीर, सोया या फिर स्प्राउट्स आई थिंक इवन नॉन वेज पीपल शुड प्रिफर। This is how you can increase your protein का intake. And if you don't increase your protein का intake, तो there are high chances of you getting hair fall या nails getting brittle. तो yeah, do increase your protein intake however you want to do it, but yeah, do it. I think what I have done is cutting off dairy, because I started feeling कि डेयरी पीने से, जैसे अगर मैंने 1 ग्लास का दूध पी लिया तो my PCOD would trigger, like I was feeling it, तो मैंने उसको बंद कर दिया। Also the doctor had told me कि dairy related products आपको बंद करने हैं। तो yeah, so dairy is what I don't consume. जैसे अगर मैंने चाय पी तो उसमें थोड़ा बहुत दूध तो चला ही जाएगा, बट दैट इज फाइन। तो ग्लास भर भर के दूध पीना दैट इज नॉट फाइन। वो बचपन वाले दिन खत्म हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज।
This is like, you know, the brahmastra of PCOD. PCOD, as I told you, is a lifestyle disorder. Okay, अगर आप अपनी lifestyle अच्छे से रखोगे तो PCOD को bye bye बोलोगे. And exercise plays a really important role, you know, in maintaining your lifestyle. तो exercise आपको करना ही है. Do in whatever forms you can, but you have to sweat it out and you have to burn your calories. That is very important. अगर आप walking भी कर रहे हो तो it should be like brisk walking, like fast walking. ऐसे नहीं कि आप बस कुछ गार्डन में टहलने आ रहे हो, उस टाइप की वॉकिंग करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा. यू डू इट लाइक 5 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स. इट हैज टू बी ब्रिस्क. इट्स लाइक, यू नो, मेकिंग योर स्टमक, यूट्रस, योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्किंग आउट. तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत हाई एंड वाला एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा. कोई आपको बड़े बड़े वेट्स उठाने के लिए नहीं बोल रहा है. जस्ट डू लाइक, यू नो, नॉर्मल एक्सरसाइजेस, बट डू इट इन अ वे कि आप अपने कैलोरीज बर्न करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो या दिस इज वॉट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ. एंड कमिंग टू मेडिकेशंस, राइट नाउ आई एम टेकिंग ओनली थायरोनॉम. ओके, जो कि थायराइड के लिए दिया गया था. पीसीओडी वाला दैट ग्लाइकोमेट आई एम नॉट टेकिंग. मैं अपना पीसीओडी यू नो कुछ ऐसे ही, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, उसी तरह से मैं मेंटेन कर रही हूँ. बट या आई एम नॉट टेकिंग ग्लाइकोमेट बिकॉज वैसे भी बहुत सारे टैबलेट्स और भी, यू नो, चल रहे हैं. तो आई वॉज लाइक कि इसको मैं अपने तरीके से हैंडल कर लेती हूँ. एंड यू नो, वी पीसीओडी गर्ल्स नीड टू बी लिटिल कंसिडरेट अबाउट वॉट वी आर कंज्यूमिंग. ओके, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर जाने का मन तो सभी को होता है. ओके, लाइक यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू हैव टू बी लिटिल थॉटफुल कि आप क्या, यू नो, खा रहे हो. आप बहुत ज़्यादा जंक नहीं कंज्यूम कर सकते. इफ़ यू आर गोइंग आउट, देन यू नो, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर चीट कर भी लिया है, देन you have to come back and burn those calories, okay, maybe the following day, but you have to keep it in mind कि हाँ, मैंने कुछ गलत खाया है, you know, I have to burn it out. तो ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए. एंड मेरे लिए तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम था नहीं, बिकॉज आई एम अ वेरी, यू नो, दैट घर का खाना खाने वाली लड़की. इतना मुझे जंक फूड और ये सब, यू नो, बाहर का खाना इतना पसंद ही नहीं है. तो आई वुड रादर प्रिपेयर इट माई सेल्फ एंड ईट इट. तो ये पार्ट जो है, ये मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था. बट दिस वॉज माई PCOD जर्नी एंड यू नो हाउ आई एम एक्चुअली डीलिंग विथ इट. एवरी गर्ल हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी. ओके, बट द बॉटम लाइन इज डू नॉट टेक इट लाइटली. आई नो कि यू नो डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने खुद इस वीडियो में बोला है दैट दिस इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, यू कैन रिवर्स इट, इट्स अंडर योर कंट्रोल. तो ये सारी चीज़ें मैंने भी बोली हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप इसको, यू नो, लाइटली ले लो. यू हैव टू, यू नो, टेक इट लिटिल सीरियसली. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड तभी आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे. नहीं तो ये वर्स्ट से वर्स्ट चला जा सकता है इन नो टाइम. तो whenever you get diagnosed, see that you start your, you know, maintaining lifestyle journey like really fast. If not taken care, it can lead to infertility, it can lead to diabetes, which is like a very big problem. क्योंकि एक बार अगर ये हो गया ना, तो फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल है. मतलब वो हटेगा ही नहीं, फिर आपको टैबलेट्स कंटिन्यूसली लेने पड़ेंगे. लाइक माइनर प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स, ओबेसिटी, देन देयर इज हेयर फॉल. तो ये सारे प्रॉब्लम्स, यू नो, आते रहेंगे. यू हैव टू रियली टेक केयर. जिनके घर में PCOD वाले पेशेंट्स हैं, the people around should definitely, you know, take care of them. और यू नो, मूड स्विंग्स होते हैं यार, बहुत होते हैं. एंड समटाइम्स यू डोंट इवन नो कि क्यों हो रहा है, क्यों आप रो रहे हो, क्यों आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, लाइक क्यों आप इतने थक रहे हो, लाइक यू डोंट नो एनीथिंग. आई थिंक पीपल शुड एक्चुअली बी कंसिडरेट. ओके, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू, यू नो, पास ऑन टू यू पीपल. आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो. तो अगर आपको पसंद आया हो, देन प्लीज, यू नो, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो. आप भी अपने, यू नो, जर्नीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इट विल बी रियली नाइस, यू नो, फॉर ऑल ऑफ अस टू जस्ट डिस्कस द जर्नीज एंड नॉट फील अलोन. वी आर डेफिनेटली नॉट अलोन इन दिस, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है यार. पीपल आर, यू नो, नॉर्मली टॉकिंग अबाउट इट. इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस ऑन द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस बहुत ही जल्दी मिले. Yeah, I end my video here. Thank you for watching and take care. Love you guys.